الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے۔ لیول 3 کا ہمارا دوسرا سبق چل رہا ہے، جملہ اسمی اور جملہ خبریہ۔ تو اصل تو ہم آئیں گے جملہ اسمی اور جملہ خبریہ کی طرف، مبتدا کی قسموں کی طرف، اقسام کی طرف، انواع کی طرف، پھر اس کی جو ہے طریقہ کار کے آیا مبتدا معرفہ ہوگا نکرہ ہوگا اس کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے کہ اسم کی ایک تقسیم ہے، اسم کی بہت سی تقسیمیں ہیں، جیسے کچھ ہم نے پڑھ لی ہے کہ اسم کی ایک تقسیم ہوتی ہے معرفہ نکرہ کی طرف، اسم کی ایک تقسیم کی جاتی ہے تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث کی طرف، میل فیمیل کی طرف، اس طرح اسم کی ایک تقسیم ہوتی ہے واحد تثنیہ جمع کی طرح۔ تو اسم کی سب سے پہلی جو تقسیم ہوتی ہے وہ اسم کی ان 3 حصوں میں کہ اسم سب سے پہلے جو ہے پہلی تقسیم اسم کی جو کہلاتی ہے کہ اسم یا تو جامد ہوگا یا مصدر ہوگا یا مشتق ہوگا۔ یہ 3 لفظ ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد جمود سے ہے، جمود کا مطلب ہے کہ جہاں ہے جیسا ہے ویسا ہی ہے، کوئی اس میں نہ پہلی تبدیلی ہوئی نہ با ہو سکتی ہے۔ اور اصطلاح میں یعنی اسم کے ٹرمز اس کے لیے جو یوز کی جاتی ہے جامد کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ کسی سے بنا ہے نہ مزید اس سے کوئی اور لفظ بن سکتا ہے، خود بھی کسی سے نہیں بنا اور نہ مزید اس سے کوئی لفظ اور بن سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں جامد، جیسے ہے ویسے رہے گا۔ جیسے اس کی مثال ہے ایک لفظ ابراہیم، یہ ایک اسم ہے، نام ہے، اس سے یہ کسی لفظ سے بن کر نہیں آیا، نہ مزید اس سے ہم الفاظ بنا سکتے ہیں، یہ جامد ہے، جیسے تھا ویسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ لفظ دانیال، اردو میں ہم نام رکھتے ہیں دانیال، یہ بھی ایک اسم جامد ہے، اب یہ کبھی بدل نہیں سکتا، یہ جیسے تھا ویسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ مثال ہے حنظلہ، یہ ایک نام ہے، یہ جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، مزید اس میں ہم بنا نہیں سکتے۔ جیسے یہ لفظ ہے میرے پاس یہاں دیوار ہے، دیوار کو ہم کہتے ہیں جدارن، اب لے یہ لفظ جدار نہ کسی سے بن کے آئے نہ مزید اس سے ہم آگے لفظ بنا سکتے ہیں۔ میرے پاس لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حاسوب، یہ اس کا نام ہے، حاسوب نہ تو کسی لفظ سے بن کر آئے نہ مزید اس سے ہم الفاظ بنا سکتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں موبائل ہے جوالن، یہ ایک لفظ ہے، یہ جامد ہے، نہ یہ کسی سے بنا ہے نہ کہ اس سے کوئی بن سکتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کہ جو خود پہلے دن سے کسی ایک معنی کے لیے بنا دیے گئے ہیں، نہ تو وہ کسی سے بن کر آئے نہ مزید اس سے بنا سکتے ہیں، وہ کہلاتا ہے اسم جامد۔ اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ جامد کلیئر ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کے بعد دوسرا لفظ ہمارے پاس مصدر، اور میرے خیال میں یہ تو آپ کو اور بھی زیادہ کلیئر ہو گیا۔ مصدر یہ وہ لفظ ہے جو خود تو کسی سے نہیں بنا، لیکن اب اس سے ہم مزید بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں، اور یہ ہم پیچھے مصدر پڑھتے ہیں، بہت سے مصادر ہم نے پڑھے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس 3 مصدر ہے، حفظ، حشر، نصرت۔ اب حفظ یہ مصدر ہے، اسم کی قسم ہے، یہ حفظ مصدر خود تو کسی سے نہیں بنا، لیکن اب اس سے ہم اتنے الفاظ بنا سکتے ہیں، حافظہ ماضی بھی بنا سکتے ہیں، اور یحفظ مضارع بنا سکتے ہیں، اس سے اس میں فاعل بنا سکتے ہیں، حافظ، حاشر، ناصر، یعنی اس سے آپ بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں، اسماء بنا سکتے ہیں، فعل بنا سکتے ہیں۔ تو مصدر وہ اسم ہوتا ہے کہ جو خود تو کسی سے نہیں بنا مگر اس سے بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ میں نے الفاظ اسماء لفظ لکھ دیا، یہ غلطی ہوگی، بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں، اور الفاظ کے اندر فعل بھی آ جائے گا، اسم بھی آ جائے گا۔ اور اس کی مثال ہمارے پاس حفظ، حشر، نصرت، اس سے اب حافظہ فعل بھی بنا سکتے ہیں، یحفظ بھی بنا سکتے ہیں، اور حافظ اس میں فاعل بھی بنا سکتے ہیں، محفوظ اس میں مفعول بھی بنا سکتے ہیں، احفظ اس میں تفضیل بھی بنا سکتے ہیں، محفظ اس میں ظرف بھی بنا سکتے ہیں، محفظ اس میں ظرف بھی بنا سکتے ہیں، اور محفظ اس میں اعلیٰ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح حشر یہ مصدر ہے، خود تو کسی سے نہیں بنا، مانا ہے جمع کرنا، لیکن اس سے ہم حشرہ، یحشر، ماضی مضارع، احشر، لا تحشر، پھر حاشر، محشور، بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ النصرت مصدر ہے، مدد کرنا، خود تو کسی سے نہیں بنا، خود یہ ڈائریکٹ بن کے آیا ہے، بس پہلے دن سے ایسے تھا۔ ہاں اب اس سے مزید بنا سکتے ہیں،
नसरा, यंसुरु, नासिरुन, मंसूरुन, उनसुर, ला तंसुर, ओ बहुत से अल्फाज, मिनसरुन, मंसरुन, अंसर, नसीर, बहुत से अल्फाज इससे बना सकते हैं। तो ये हुआ मस्दर। जामिन ना खुद किसी से बनाए ना मजीद कोई बना सकते हैं। मस्दर खुद तो किसी से नहीं बना, डायरेक्ट ये लफ्ज वजह ही हुआ। हिफ्ज, हश, नुसरत, अज़रब, असम, अरफत, बहुत से हजारों मस्दर हैं, लेकिन आगे उससे आप बहुत से अल्फाज बना सकते हैं। अच्छा, तीसरा आ गया मुश्तक। ये क्या है? कहता है कि ये तीसरे नंबर पर है। ये बिल्कुल ये था, न खुद बना है, न किसी न कोई इससे बन सकता है। ये खुद तो किसी नहीं बना, लेकिन इससे सैकड़ों अल्फाज हम बना सकते हैं। कहते हैं ये वाला, ये तो दोनों तरफ चलता है। कहते हैं ये खुद भी किसी से बनकर आया है, और अब इससे मजीद भी हम बना सकते हैं। कैसे? मस्तक खुद भी बना हुआ होता है किसी न किसी लफ्ज से, और मजीद भी बना सकते हैं। मुश्तक जो अल्फाज होते हैं, अस्मात हैं, वो खुद मस्दर से बनते हैं। मुश्तक अल्फाज वो बनते हैं मस्दर से, और फिर आगे इनसे मजीद भी बना सकते हैं। जैसे अब मुश्तक की मिसालें, हाफिजुन, हाशिरुन, नासिरुन, ये इसकी मिसालें हैं। महफूजुन, महशूरुन, मंसूरुन, ये मुश्तक हैं। अब ये खुद बनी है मस्दर से। ये हाफिजुन किससे बन के आया है? मस्दर हिफ्ज से। हाशिरुन किससे बन के आया है? अल हश्र मस्दर से। नासिरुन नुसरत से बन के आया है। अच्छा, मजीद भी इनसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इनको हम तस्निया जमा में ले जाए, हाफिजुन, हाफिजान, हाफिजूना, हाफिजीना। फिर उसके बाद इसकी मोनस बना सकते हैं, हाफिजतुन, हाफिजतान, हाफिजातुन। फिर इसमें मुबालगा भी हम पढ़ सकते हैं, हुफ्फाज, बहुत जमा का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, इस तरह हशरा से भी, नसरा के भी, इससे हमने नासिर भी बनाया, नसीरुन भी बना दिया। अच्छा, अंसर भी बना दिया। तो ये आगे फिर हाफिजुन, हाशिरुन, इनसे आगे हम बहुत से अल्फाज और भी बनाते रहते हैं। तो ये खुद भी बने होते हैं, इनसे आगे मजीद बनाते हैं। जैसे अब ये मुजक्कर है, इससे हम मोनस बनाते हैं। ये वाहिद है, इससे तस्निया जमा बनाते हैं। इससे मुबालिगे का सीगा बनाते हैं, माना फाइल का ही होता है उसमें। तो ये वो मुश्तकात अल्फाज हैं। फाइल हो गया, मफूल हो गया, इसमें तफजील हो गई, इसमें ज़र्फ हो गया, इसमें आला, इनको मुश्तकात कहते हैं। 6 अस्माए मुश्तकात हैं। इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफ्त मुशब्बा, इसमें तफजील, इसमें ज़र्फ, इसमें आला। ये सिफ्ते अस्माए मुश्तकात कहलाती है जी। और तकरीबन इनमें से अक्सर हम पढ़ चुके हैं, दोबारा भी आगे पढ़ेंगे। जैसे इसमें तब्दील पढ़ेंगे, इसमें मुबालगा पढ़ेंगे, और इसमें ज़र्फ पढ़ेंगे, इसमें आला पढ़ेंगे। अब देखिएगा कि अस्माए मुश्तकात कौन कौन से हैं। अस्माए मुश्तकात ये 6 शुमार होते हैं। इसमें फ़ाइल, जैसे हाफिजुन, हाशिरुन, नासिरुन। इसमें मफूल, महफूजुन, महशूरुन, मंसूरुन। सिफ्त मुशब्बा, हफीजुन, नसीरुन, इन दोनों से आता है। समीउन, अलीमुन, रहीमुन, करीमुन, ये सारे सिफत मुशब्बा के वजन है। इसमें तफजील, जैसे अंसर, अहफज, अहशर, अक्सर, ये इसमें तफजील आ गया। और 5वें नंबर पे आ गया इसमें ज़र्फ, जैसे महफज, महशर, मनसर, हिफ्ज करने की जगह, जमा करने की जगह। महशर कहते हैं ना कि महशर के अंदर अल्लाह जमा करेंगे, तो ये ज़र्फ आ जाता है, महशर। और मनसर, मदद करने की जगह। जगह और वक्त के लिए जब लफ्ज आ जाता है, जबर के साथ पढ़ चुके हैं हम। और आला, आला का ये आला मैंने गलत लिखा है, ये आला इस तरह नहीं है, आला ये है, टूल्स, सामान। तो उसका वजन आ जाता है मीम के जेर के साथ। महफज, महशर, मिनसर, मिजरब जी। तो ये इसमें आला, ये 6 अस्माए मुश्तकात हैं। ये खुद मस्दर से बनते हैं, फिर आगे इनसे तस्निया, जमा, मोनस और काफी सारे अल्फाज हम बना लेते हैं इनसे। अच्छा, अभी एक जो है सिफ्त मुशब्बा है अस्मा मुश्तकात में से। सिफ्त मुशब्बा, इससे फ़ाइल और इसमें तफजील, इन तरीकों के इन 3 लफ्ज हैं। इनका माना तकरीबन करीब करीब है। जैसे हमारे पास अब यहाँ लफ्ज है, एक है नासिर, दूसरा है नसीर, और तीसरा है अंसर।
माना तीनों में, अच्छा इन तीनों में माना जो है एक ही पाया जाता है। नासिरुन का माना ही मदद करने वाला, नसीरुन का माना ही मदद करने वाला, अंसर का माना ही मदद करने वाला। लेकिन ये मुतलक है, नासिरुन मदद करने वाला आर्जी तौर पर जब कर रहे हैं तो ये नासिर है, जब तक आप मदद कर रहे हैं किसी की तो आप नासिर हैं, जब कर नहीं रहे तो आप नासिर नहीं है। सामे, जब तक आप सुन रहे हैं तो सामे हैं, अगर नहीं सुन रहे तो आप सामे नहीं है। लेकिन नसीर का मतलब ये है कि ये वो सिफ्त होती है जो परमानेंट हो, ये आर्जी नहीं होती, अबद से अजल तक है। अल्लाह की जितनी सिफात है वो अबद से अजल तक है, यानी जो परमानेंट सिफ्त होती है उसके लिए इसमें सिफ्त मुशब्बा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्लाह की जात की जितनी भी सिफात है वो अक्सर जो है फ़ाइल के वजन पर आती है इसी सिफ्त मुशब्बा पर, क्योंकि वो अबद से है अजल तक है, आर्जी नहीं है, मुस्तकिल है वो। अल्लाह जब कायनात नहीं थी उस वक्त बिल्कुल अल्लाह के अंदर मदद वो करने वाले थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, और क़यामत जब नहीं होगी वो होंगे। जैसे अल्लाह पाक समी है, जब कायनात में कोई भी नहीं था वो फिर भी सुनने की सलाहियत और ताकत रखते थे और सुन रहे थे, और अब भी सुन रहे हैं। और जब कायनात में कोई नहीं होगा और एक ऐलान होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन बादशाह किसकी है, तो उस दिन भी वो समी होगा, सुन रहा होगा। अंसर का माना ये और ये माना आर्जी में है, ये माना है मुस्तकिल में है, यानी ये परमानेंट होती है इसके अंदर जो चीज हो, इन दोनों में आर्जी है। लेकिन फर्क ये है कि ये मदद करने वाला, ये तकाबल है, इसमें कंपेरेटिव आती है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है दूसरे के साथ कि ये ज्यादा मदद करने वाला है फलां के मुकाबले में। अब एक तो ये सिफत मुशब्बा में वो सिफात आती है जो बिल्कुल परमानेंट हो, या बिल्कुल मुस्तकिल तो नहीं है लेकिन मुस्तकिल जैसी है। जैसे हुस्न है, ये हुस्न कोई एक दिन का नहीं होता, खैर आजकल का तो हुस्न सिर्फ 4 घंटे का होता है, इतना चूना और इतना वो मिल रहे थे। जैसे कि पिछले साल एक केस हुआ था कि किसी ने अरब में उसने काजी के सामने अदालत में केस कर दिया कि भाई इस औरत ने मुझे धोखा दिया, कि जब भी मैंने इसको देखा इसका हुस्न जमाल कमाल का था, लेकिन जब शादी की तो सुबह इसने चेहरा धुआ तो फिर तो देखने के काबिल ना था। तो ये हसीन, ये हुस्न जो है अगरचे परमानेंट नहीं है लेकिन इतना लॉन्ग टाइम तक होता है कि गोया कि ये उस तरह है। तो इसलिए सिर्फ मुशब्बा के लिए वो सिफात भी हम इस्तेमाल करते हैं, उन सिफात के लिए भी सिर्फ मुशब्बा को जो लॉन्ग टाइम तक होती है। जैसे जहानत हो गई, किसी की जहीन है, फतीन है, या किसी ने फिका में इतनी मेहनत की है कि अब उसको कहते हैं फकीहुन, गोया कि अब फकाहत और समझ बूझ उसके जिस्म जान की एक ऐसा बन गया है। तो सिफ्त मुशब्बा उन मानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तकिल होते हैं या मुस्तकिल की तरह बन जाते हैं, और इसके बाकायदा यही वजन है नसीरुन। फिर इसकी तस्नीह जब हम पढ़ते हैं नसीरुन, नसीरानी, नसीरूना, फिर इस तरह मोनस भी नसीरतुन, नसीरतानी, नसीरतुन, या समीउन, समीआन, समीउना, समीआतुन, समीआतान, समीआत। जैसे इसमें फाइल पढ़ते हैं इस तरह सिर्फ मुशब्बा की भी मुज़क्कर और मोनस तस्नीह जमा की गिरदान पड़ी जाती है।